Okay, students. So we know that we have discussed electron up to electron dot structure, electron dot structures, structures, structures of some compounds, some compounds. क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? फिर से बनाते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो व्हाट विल डू इज वी विल राइट द सिंबल ऑफ द एटम. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का लिखना था तो सोडियम के लिए राइट द सिंबल ऑफ द एटम एंड देन वी विल मार्क द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अ क्रॉस और अ डॉट, ठीक है ना. फॉर क्लोरीन we will write Cl and we will mark the electron with either dot or cross. So valence electrons of chlorine are 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So when we ask about the bond formation of NaCl, what we can see is the Na will donate its one electron and achieve a stable octet after donating this electron, and chlorine also will accommodate one more electron, get a negative charge and make a stable configuration here. Once the stable configuration is formed, they are attracting each other with electrostatic force, which finally bonds them together and make a chemical bond. तो हमने ऐसा डिस्कस किया था. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेज नंबर 49 का डिस्कस कर रहे थे, पेज 49 क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया. तो उसमें क्या लिखा था? सबसे पहले हमको ये बताना था दो हमारे पास सब्सटेंस दिए गए थे Na2O और MgO. इसके सबसे पहले हमें डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने थे. हमने सबसे पहले इसके डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है ना. तो डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे मिलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए तो आप आराम से लिख सकते हो कि what we have to do is first thing we have to write the symbol of the atom and then we will place the the dots around the atom as the number of valence electron available with us, ठीक है ना. जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतने ही हम डाल देंगे. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. तो आउटरमोस्ट शेल में अपन एक इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लिखते हैं. नाउ Na2O के लिए हमें क्या करना है? वी कैन सी देयर आर 2 Nas. तो एक Na लिखा और दूसरा Na लिखा और हमारे पास O एक ही है तो O को हम सेंटर पे रखते हैं ताकि हम लोग इजीली समझा सकें कि कैसे हो रहा है. तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा रहा हूँ. देयर आर 3 हियर एंड 3 हियर. ओके, तो वी नो ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स and sodium has 2 electrons. So what we'll do, sodium will donate 2 of its electrons to oxygen and forms Na positive ions, and O will, after receiving the 2 electrons, it will forms O2 negative ions, ठीक है ना. O2 negative ions. Similarly MgO का बनाना है तो Mg क्या करेगा? Mg, the outermost shell of the Mg will consist of 2 electrons. How many electrons? 2 electrons. And outermost shell of oxygen will contain 6 electrons. अब यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर अगेन Mg will donate 2 of its electrons to oxygen and will form a stable Mg2 plus and O2 negative. This is how we can portray the formation of Na2O and MgO using लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अब ये मेरे को पता कैसे चलता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके लिए यू शुड नो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ Na का एटॉमिक नंबर है 11 एंड वी नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वी नो द फर्स्ट शेल कैन बी फिल्ड विद ओनली मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल कैन ऑलरेडी बी फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट ऑल्सो 8, ठीक है ना. ऐसे हम भरते हैं. So when we will fill 2 electrons, we will left with 11 minus 2, that is 9 electrons. 9 electrons are there, then we can fill 8 electrons here. We will left with 1 electron and 1 electron will be filled in the outermost shell. So we can see there is only 1 electron in outermost shell. That's why I placed only 1 cross mark here. Similarly, in the case of oxygen, you should know this is of sodium. Now we will in the case of oxygen, the atomic number of oxygen is, we know, 8. First shell we will be filling with 2 electrons. After we have filled the 2 electrons, we will left with only
6 electrons. 6 electron will be filled in next orbital because it can accommodate maximum of 8 electron. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 6. तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको 6. दैट्स वाई आई प्लेस्ड 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हियर. ठीक है ना. अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 Na को जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आने के लिए. वो दोनों क्या करेंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे 2 8 1 जैसे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे. देने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8. इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होगी 2 8. जब ये कॉन्फ़िगरेशन हुई तो यहाँ पर हमारा क्या बना Na पॉजिटिव, यहाँ भी बना Na पॉजिटिव और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए इसलिए क्या बना O2 नेगेटिव. ठीक है ना. ऐसे ही Mg के केस में था. Mg का नंबर कितना है, Mg का नंबर है 12. 11 के लिए देखा था 2 8 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 8 2 2 and 8 10 एंड देन 2 12. तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको 2 दिख रहे हैं. तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 डॉट्स लगाए. अब ये क्या करेगा दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 6. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिए. तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 8 इस वाले की और ये बनेगा O2 नेगेटिव और ये Mg2 पॉजिटिव जो है ये क्या बना रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रह जाएगी 2 8 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए. 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा या नेगेटिव चार्ज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है. वी आर आस्क्ड कि जो यहाँ पर इसमें एनायन और कैटायन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं. तो फर्स्ट वाले में हम देखेंगे देर आर टू Na पॉजिटिव कैटायंस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं. ठीक है ना. ये दोनों क्या है बेटा, कैटायंस. दीज टू आर कैटायंस और ये क्या है बेटा, एनायन. क्या बेटा, एनायन. तो 2 Na कैटायंस एंड 1 O2 नेगेटिव anion is available when Na2O is formed. And here you can write 1 Mg2 positive cation and 1 O2 negative anion is formed. तो ये हमारा क्वेश्चन था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पेज 49 पे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बताता है, को पूछ रहा है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक बॉन्ड्स आर मोर. क्यों मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड का ज़्यादा होता है, आयनिक बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ज़्यादा क्यों होता है, इसके बारे में. आयनिक कंपाउंड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर मोर. वाई. ठीक है ना. तो उसका सीधा रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था. अभी यहाँ पर ऊपर हमने देखा Na+Cl नेगेटिव जब बना फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा. जो अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल. एक और मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है, वहाँ भी ऐसे NaCl लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव. फिर अगला एक और मॉलिक्यूल रखा हुआ है, वो भी ऐसे रखा हुआ है NaCl. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव. या नीचे एक रखा हुआ है NaCl ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे रखा हुआ है NaCl पॉजिटिव नेगेटिव. बॉन्डिंग है. ठीक है ना. ये बॉन्डिंग देख रहे हो आप, इसकी हर तरफ बॉन्डिंग दिख रही होगी आपको NaCl. एक मॉलिक्यूल और यहाँ लगाया Cl और Na का, यहाँ भी लगाया Na का, यहाँ Cl का, Cl का यहाँ Na का. ठीक है ना. तो यहाँ भी बॉन्डिंग. तो प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इनके आपस में अट्रैक्टिव फोर्स बनते हैं. ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो डिस्टेंस अगर बीच की कम होगी तो हमारा फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा. बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होते हैं, ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, इनको जब हमें अलग करना होता है, यानी गैसेस फॉर्म में लाना है, मेल्ट करना है इनको, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए. तो लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ionic compounds, between the molecules of ionic compounds, due to positive and negative charged ions present in the compounds. ठीक है. due to the presence in the compound, presence of
आयंस इन द कंपाउंड्स। तो इसके बाद आप लिखोगे ड्यू टू दिस सिंस force is inversely proportional to the distance between the ions and the distance is very small, that is why there is a strong force, and to overcome this force and melt the solid we need to apply a lot of energy। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कब देंगे? when there will be a lot of temperature, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हीट देने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के लिए हमें हीट बढ़ानी पड़ेगी, दैट मीन्स वी हैव टू increase the temperature। So that's why it required since it required a lot of energy, that's why the melting point of the ionic compounds are more, ठीक है ना, as compared to other molecules, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि हमारे रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसके प्रॉपरली आंसर लिखूँ तो F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू इक्वल लिखूँ तो मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 आर चार्जेस ऑन द आयंस। तो इस पर चार्ज +1 -1 का चार्ज है, तो प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, और आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एफ़ की वैल्यू हमें बदल जाएगी। तो जितना आपके आर की वैल्यू छोटी होगी उतनी एफ़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितने क्लोजली पास होंगे उतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता जाएगा। तो अगर सॉलिड्स हैं, सॉलिड की फॉर्म में है तो बहुत पास में होंगे, हमें पता है पास में होंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा फोर्स होने की वजह से उसको जब हमें मेल्ट कराना है तो वी नीड टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट्स वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक सॉलिड्स आर मोर, ठीक है ना। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे जो आपकी क्लास में आज डिस्कस हुए, इनके बारे में थोड़ी चर्चा हुई, सिखाया गया बच्चों को कैसे होगा क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास अब आपका यहाँ तक ख़त्म होने के बाद आपका सिलेबस यहाँ पर ओवर हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वी जस्ट नीड टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अब मंडे को, तो मंडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू।